Good evening, everybody. Please, in the chat box, write from which city have you joined this webinar. And Bhavna, Bhavna, यस मैम। admit कर लेना यस सब. मैम। Admit. मैम आपने एक बारी, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, आपने मेरे को को होस्ट या फिर आप मेरे को को होस्ट बना दो। ठीक है, ओके, बना दिया. Others also, please write from which place have you joined.
We request everyone to please stay on mute. We will start the session shortly. We are just waiting for a few more people to join in. Kindly stay tuned. Good evening, everybody. Good evening. Thank you. So please, in the chat box, write, are you a diabetic or are you here to learn something about diabetes? Just for information purpose, have you joined या आप में से कोई diabetic है? और अगर है तो प्लीज अपनी हेल्थ स्टोरी लिख दो. कब डायग्नोज हुआ था, कितना HbA1c है, इंसुलिन पे हो तो कितना इंसुलिन ले रहे हो. हेलो डॉक्टर शरद. हाय रिद्धि. हेलो रोमाना. हेलो मैम. हेलो. Anybody who is a diabetic here? Charanjit Chima, diabetic since 6 years. Uni Krishnan Nair, to learn. My husband is a diabetic since 13 years. Okay, Romana. Anybody else who is a diabetic here? And anybody who is on insulin? Yes, madam, I am diabetic. Since when, Mr. Arvind? Yeah. I took the training with previously also. Okay. So have you been able to improve your diabetes? Sometimes improve, sometimes again come. Depend upon the situations. Okay, no, it should not depend on If the situation. if festival season, it will increase. If not non-festival season, it will again same. This will only happen till the time you have not balanced your body properly. Right? Yeah, no, I'm not eating sugar at all actually, whatever it is. But I don't know why. Sometimes it is okay, comes around 6.5, 7. Sometimes it will again comes 7.5, 7.8, like that. So, okay, today in the webinar, you will learn why it is happening and you will know how you can correct it. Yeah. I Yeah. took the full program with Dr. Das also, Okay, but 2 years before now, already more than 2 months. 2 years ago. Okay. Romana, husband is a diabetic and your fasting is also. Okay, your husband's fasting is high, 132 to 135. Rashmi's husband is taking 15 units of insulin. Yeah. Okay, great. So, why actually do you think that I'm doing a webinar to guide you that you should reverse your diabetes? Is there any reason for this? Diabetes, acha, anybody here who does not understand Hindi? No. So is it all right if we do today's webinar in Hindi? Yeah, in mix basically, better. Okay. Okay. So, बहुत ज्यादा हिंदी भी थोड़ा इश्यू हो जाता है. अच्छा क्यों अरविंद? हाँ जी. क्यों इश्यू हो जाता है बहुत ज्यादा हिंदी में? थोड़ा मिक्स रहता है तो थोड़ा भी आदत मिक्स की आदत हो गई है. हाँ, सही बात है.
परफेक्ट। तो हमको डायबिटीज रिवर्स करने का सोचना भी क्यों है? क्या रीजन होना चाहिए हमारा? रीजन तो तो क्या प्रॉब्लम है अगर हम डायबिटिक भी रह ले हैं? तो इज देयर अ प्रॉब्लम? डेफिनेटली नो, हाँ, या Yes, ma'am. डेफिनेटली, या There are a lot of problems लाइक afterwards. After like 8 to 10 years, it will become, you will become heart patient, thyroid will come, blood pressure will come. It's a slow poison. right. So I that's the generally correct word. say this is like दीमक। Dimak, yeah. आपको पता भी नहीं चलता कब वो आपके घर के पुर्जों को खराब कर रही होती है ना। जी जी ये जी आपका जी। डायबिटीज कब आपकी नर्व्स, हार्ट, आईज को खराब कर रहा है, हमें आइडिया भी नहीं लगता है। वी थिंक कि दैट वन मेडिसिन वी आर टेकिंग एंड दैट इज ऑल राइट। More importantly, there are few more reasons why we should reverse our diabetes. Eight, Mm. we cannot eat freely. There is always Yeah, a pressure that we have to get some tests done, some medicines have to be taken. And type 3 diabetes, we all know, is Alzheimer's disease, which is memory loss. yeah. है ना? तो आई थिंक डायबिटीज रिवर्स आज के लिए तो इतना जरूरी नहीं है करना, पर फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है करना। अदरवाइज वी विल लैंड अप spending so much more and leading a life which we will not enjoy. जी। So, yeah, so let's start. I am going to try and give you a new perspective on diabetes today. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes. Very good. So, the topic for today is reverse your diabetes and break free from the insulin trap. Now, why I have written this? Even if you are not taking insulin today, there are chances or possibilities that you might be put on insulin few years later. Yes or no? Yes. Na? Yes. So, we must reverse our diabetes today itself so that that trap never comes or happens. So, break free from the insulin trap is you don't take insulin now, nor do you stay diabetic that your doctor can prescribe you insulin after few years. Okay, so let's see how this can be done. You know, I'm an author, a coach, an MBBS doctor from Amritsar Medical College with 30 plus years of experience. I hold a fellowship in functional medicine from American Academy of Anti-Aging Medicine, in liaison with George Washington University, and I'm a certified executive coach from Center of Executive Coaching, Florida. I'm also the president of Indian Association of Functional Medicine. Please mute yourself. Please mute yourself. Yep. Yes, please mute yourself because I think I don't like disturbance. So, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से हम डायबिटिक और लोग होते जा रहे हैं, ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हम? There are some reasons for that. पहली चीज, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट अभी हमारी है वो क्या करती है? वो हमें दवाइयां देती है ब्लड शुगर कम करने के लिए, पर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को, जो कि रूट कॉज है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो रूट कॉजेज है उनको टारगेट नहीं करती है, तो उनको ठीक भी नहीं करती। इससे क्या होता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग की हमारी दवाई पे डिपेंडेंस हो जाती है ना? और इसलिए हमको ये हमेशा पढ़ाया गया है कि एक बार जब हम डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की दवाई शुरू करते हैं तो हम पूरी लाइफ वो दवाई लेते हैं, है ना? तो पेशेंट्स को बताया गया है कि डायबिटीज इरिवर्सिबल है, आपकी मेडिकेशन ईयर्स में बढ़ेगी ही, कम कभी नहीं होगी। और ये जो नैरेटिव है ये पेशेंट को एफर्ट करने के लिए मोटिवेट ही नहीं करता। पेशेंट को भी लगता है कि अब यह तो दवाई लग गई, अब तो ये खानी ही पड़ेगी, थोड़े साल बाद में 1 की 2 होगी। तो एंड पेशेंट को रास्ता भी नहीं पता है कि क्या करना होता है।
इसलिए दवाई पूरी उम्र चलती रहती है। इसमें हो क्या रहा है, सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स कंप्लीटली इग्नोर कर दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक डायबिटिक की स्ट्रेस कैसा है, उसकी गट हेल्थ कैसी है, उसका डाइटरी चेंजेस की जरूरत है कि नहीं है, उसका हार्मोन इम्बैलेंस कैसा है, इस पे कोई बात ही नहीं होती है। बस हेल्दी खाओ, चीनी मत खाओ, कार्ब्स कम खाओ, या अब हम मिलेट्स खा लो भी बोल देते हैं कई लोगों को, बट उसके बियॉन्ड हम कुछ भी खास नहीं कर पा रहे होते हैं। यस और नो? यस। Yes. है ना? तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि वो डिपेंडेंसी खत्म ही नहीं हो रही और हम दवाइयां लेते ही जा रहे हैं। और डिस्पाइट कि हम दवाई ले रहे हैं, क्योंकि हम उन लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इग्नोर करी जा रहे हैं, पेशेंट्स को फिर भी न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम तो वही की वही है ना, हम बस ऊपर से पट्टी लगा देते हैं ताकि दिखे ना किसी को चोट, राइट? एंड hello, please mute yourself, I will otherwise log out. Please be careful, please mute yourself, guys. So managing sugar is not same as reversing insulin resistance. हमको कॉज ठीक करना है, हमको शुगर नहीं कम करने के पीछे भागना। How many of you agree कि यस हमको कॉज ठीक करना है, हमको शुगर कम करने के पीछे नहीं भागना है? यस मैम। है ना? तो अब इन चीजों को ठीक कैसे करेंगे? फंक्शनल मेडिसिन को अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ जोड़कर अप्लाई कर दें तो हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गट डिसबायोसिस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, और जब वो अंडरलाइन इम्बैलेंसेस हमारे ठीक होते हैं तो हमारा शुगर लेवल्स अपने आप बेटर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भावना, यस मैम। एक बार आप देखो ना कौन म्यूट नहीं है। मैम वही चेक कर रही हूँ मैम। यस, एवरीवन इज म्यूटेड मैम। अब मैंने किया है। तो अब अगर हम देखते हैं, पहले देखते हैं जो इंसुलिन पे पेशेंट्स हैं उनका क्या हाल है, और वही हाल जो दवा पे उनका भी है। वो बार बार अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे क्यों डायबिटीज हुई, मैं क्यों रोज दवाई खा रहा हूं या इंसुलिन ले रहा हूं, क्या पूरी उम्र मुझको इंसुलिन लेनी पड़ेगी या दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर मुझे एनर्जी कम लग रही है, मैं बहुत थका हुआ रह रहा हूं और मेरा वेट फिर भी बढ़ता जा रहा है, व्हाट शुड आई डू? ना? तो इस कंडीशन में अगर हमको इस डायबिटीज की दवाई के ट्रैप से या हमको इंसुलिन के ट्रैप से बाहर निकलना है या अपने लव्ड वंस को बाहर निकालना है, तो हमको क्या करना होगा? हमको केयरफुल रहना होगा कि अगर हमें ये साइंस हैं डायबिटीज के, तो हम इन साइंस पे ही अपना एक्शन जल्दी ले लें, सो दैट वी डोंट गेट ऑन टू मेनी मेडिसिन और ऑन इंसुलिन। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो क्या रहा है? प्री डायबिटिक हो रहे हैं, साइलेंट हाई ब्लड शुगर हो रहा है जो हमें पता भी नहीं चल रहा बहुत बार, फैटी लिवर है जिसकी वजह से पुअर इंसुलिन क्लियरेंस हो रही है, पीसीओडी बहुत सारी गर्ल्स में हो रहा है जिसका रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होता है, ओवरवेट, बेली फैट मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं ना, एब्डोमेन विसरल फैट बढ़ता जा रहा है। इन केसेस में हमको ध्यान रखना है दैट वी शुड एक्ट फास्टर। और ये जब सिम्टम्स होते हैं तो वी नीड टू रिमेंबर कि इंसुलिन रेजिस्टेंस चीख चीख के हमें बुला रही है और बता रही है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो, राइट?
तो बेसिकली ये हो रहा है हमारी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन इतना बढ़ गया है कि लोगों को धक्का मार मार के उसको सेल के अंदर डालना पड़ रहा है, और बाकी इंसुलिन फैट सेल्स में जा जाकर फैट सेल्स को बढ़ा रहा है। तो आपको लगता है ये प्रॉब्लम, कैन यू विजुअलाइज आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? जो लोग शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे कर करके हमको ग्लूकोज अंदर डालना पड़ रहा है, एग्जैक्टली ऐसे कर करके। सो इमेजिन कब तक हम ऐसे चलेंगे ना। तो हमें 4 फेजेस में अपना ट्रीटमेंट को प्लान करना है। पहला, अवेयरनेस, हमको वो ब्लड टेस्ट करवाने हैं सारे, जिनसे हमको समझ में आए कि हमें डायबिटीज हो क्यों रहा है, या हम इंसुलिन तक पहुंचे कैसे हैं। हमें अपने फूड के कुछ स्वैप्स करने हैं, ठीक है, मतलब रोटी की जगह मिलेट शिफ्ट कर दिए। फिटनेस के कुछ हैक्स, जैसे कि खाने के बाद वॉक करना 10 मिनट्स, दैट कैन हेल्प यू मैनेज योर शुगर बेटर। स्ट्रेस रीसेट करना है, स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिग 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 कॉजेज ऑफ डायबिटीज, एंड इसको रीसेट करने के लिए हम ब्रीदिंग से लेके कोई सप्लीमेंट तक ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गए बेसिक्स जो हम में से कुछ लोग करके भी आए हैं, जैसे मिस्टर अरविंद अभी प्रोग्राम करके आए हैं कहीं, तो आई एम श्योर ही इज डन दीज 2 थिंग्स। बट ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, ये बहुत सारे लोग डायबिटीज रिवर्सल में मिस कर रहे हैं, विच इज गट, लिवर एंड हार्मोन करेक्शन। जब हम गट को ठीक करते हैं, लिवर को क्लीन करते हैं और हार्मोन बैलेंस करते हैं, तब आता है लाइफ में अबंडेंस, विच मीन्स एनर्जी, हम ट्रैवल कर पाते हैं, फैमिली हैप्पी रहती है हमसे, और हम लेगेसी छोड़ पाते हैं ना। तो देखते हैं एक पेशेंट को, राजेश, 52 ईयर ओल्ड IT प्रोफेशनल और बिजी जॉब, फैमिली टू सपोर्ट। डॉक्टर ने बोला कि योर डायबिटीज इज प्रोग्रेसिंग, आपको इंसुलिन चाहिए होगा। उसने बहुत नहीं भी चाहता था, उसने शुरू कर दिया, पर इंसुलिन फ्रीडम बनने की जगह क्या हुआ, प्रिजन बन गया, क्योंकि अब हर मील से पहले उसको देखना पड़ता था कितनी शुगर है, कितना इंसुलिन लेना है। ज्यादा इंसुलिन लिया तो वेट बढ़ गया, ज्यादा वेट बढ़ा तो ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई, ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई तो और इंसुलिन की डोज बढ़ गई। तो इस ट्रैप में, एंड सेम गोज फॉर मेडिसिन, आपने मेडिसिन ली, आपको वेट गेन हुआ, ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई, तो या तो उस मेडिसिन की डोज हाई करनी पड़ जाएगी या एक और मेडिसिन साथ में डालनी पड़ जाएगी। तो बेसिकली ट्रैप से बाहर निकलने की जगह हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, राइट। तो लोग कहते हैं कि डायबिटिक्स के लिए इंसुलिन इज ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन। यस, इट इज सेफ व्हेन यू नीड इट, पर जब आपकी बॉडी ही ज्यादा इंसुलिन बना रही है पर वो इंसुलिन यूज नहीं हो पा रहा, तो और इंसुलिन देना सोल्यूशन है, या इंसुलिन बॉडी यूज कर पाए वो ठीक करना सोल्यूशन है? क्या सोल्यूशन है, 1 या 2? 2. है ना, क्योंकि जब ऑलरेडी ज्यादा इंसुलिन है तो आप बाहर से इंसुलिन दे रहे हो तो गलत ट्रीटमेंट हो गया, राइट। सेकेंड, ये डर लगा रहता है पूरा टाइम कि अगर मैं इंसुलिन बंद करूंगा या करूंगी तो मेरी शुगर बहुत बढ़ जाएगी। नहीं, जब आपकी रेजिस्टेंस इंप्रूव आ जाएगी तो आप इंसुलिन खुद से बंद कर पाओगे। जब आपकी रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाएगी तो आप मेडिसिन खुद से बंद कर पाओगे। एक और बहुत मिथ है कि लोग बोलते हैं कि उनको डॉक्टर ने बोला कि डायबिटीज हमेशा खराब होता ही जाएगा, राइट, बट ऐसा नहीं है। रूट कॉज ट्रीटमेंट के साथ रिवर्सल पॉसिबल है। तो टर्निंग पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है? राजेश ने क्या किया, उसने
ऑब्वियसली मेरे साथ काम करना शुरू किया और बोला मुझे रूट कॉज रिवर्सल अप्रोच पे डाल दो। हमने उसका फूड ठीक किया, टाइमिंग ठीक की, एंटी इन्फ्लेमेटरी चॉइसेस दिए उसको, उसके गट हेल्थ पे काम करा, उसके स्ट्रेस एंड स्लीप को बैलेंस किया और उसको डेली मूवमेंट या एक्सरसाइज करने के लिए बोला। रिजल्ट आप देखो, कहाँ वो पहले इंसुलिन लगा रहा था, कहाँ अब दौड़ भाग रहा है, टोन्ड बॉडी है। तो अब राजेश की न्यू रियलिटी क्या हो गई है? अब राजेश आराम से ट्रैवल करता है, सोशल इवेंट्स पे बिना डरे खाता है, अपनी लाइफ उसके कंट्रोल में है, उसको ऐसा लगता है। एंड उसकी वाइफ ने आके बोला इट फील्स लाइक आई गॉट माई हस्बैंड बैक। और ये राजेश की स्टोरी नहीं है सिर्फ, ये बहुत सारे पेशेंट्स जिनके साथ मैं काम करती हूँ उन सबकी स्टोरी है। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि टाइप 2 डायबिटीज लाइफ लॉन्ग प्रिजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक से स्टेप्स लोगे आप तो आप डायबिटीज को पहले मैनेज बेटर कर सकते हो, इंसुलिन बंद कर सकते हो और फिर धीरे धीरे मेडिसिन भी बंद कर सकते हो। इसके लिए क्या फ्रेमवर्क है जो मैं यूज करती हूँ? इट इज कॉल्ड 3F फ्रेमवर्क। इट इज अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क, it is science backed and it is sustainable. Simple, science backed and sustainable framework. पहला F है food, right choices, right time, real meals and no fat diets. Second, fasting. किस पेशेंट को कितने घंटे फास्टिंग करनी है, कितने दिन करनी है, इंटरमिटेंट करनी है या वाटर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, फैट लॉस को सपोर्ट करता है और सेलुलर रिपेयर भी कराता है। एंड थर्ड, वेरी इजी बट आई डोंट नो व्हाई वी आर मिसिंग इट, फाइबर। इट प्रमोट्स गट हेल्थ, मतलब कि गट की हेल्थ को बेटर करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और डाइजेशन को नेचुरली बेटर करता है ना। एंड स्लो रिलीज जब शुगर की होती है तो आपको भूख लेट लगती है, क्रेविंग्स कम होती हैं, एजिंग कम होती है एंड यू फील वेरी एनर्जेटिक। ये एक और केस स्टडी है। 48-year-old मेल, आईटी प्रोफेशनल, टाइप 2 डायबिटीज 4 साल पहले डायग्नोज हुआ, मेटफॉर्मिन लेता है 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, बहुत फटीग, बेली फैट निकला हुआ, पुअर स्लीप और शुगर क्रेविंग्स की सिम्टम्स के साथ ही केम टू मी। HbA1c 8.2%, फास्टिंग ग्लूकोज 165, पोस्ट मील 210। लाइफस्टाइल क्या था? ब्रेकफास्ट स्किप करता था, हाई रिफाइंड कार्ब्स लेता था, परांठा, ब्रेड, राइस, लेट नाइट स्नैकिंग, हाई वर्क स्ट्रेस। हमने क्या किया? पहले न्यूट्रिशन में उसको एलिमिनेशन डाइट पे डाला विद स्पेशल प्रोटोकॉल फॉर डायबिटीज, हेल्दी फैट्स दिए उसको जैसे नट्स, सीड्स एंड ऑलिव ऑयल, शुगर, पैकेज फूड एंड फ्राइड स्नैक्स अवॉइड किए, डेली 30 मिनट्स की ग्राउंडिंग बोला, माइंडफुल ब्रीदिंग करवाई, डायबिटीज की एक्सरसाइजेज हैं 20 मिनट्स की वो कराई वीडियो देखकर, ग्रैटिट्यूड लिखवाया एंड स्लीप हाइजीन में 2 घंटे पहले सोने के लिए बोला। सप्लीमेंट्स दिए कुछ, गर्ड केयर, लीकी गट केयर, नैनो कर्क्यूमिन, मेलाटोनिन, ओमेगा 3, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम। 12 हफ्ते बाद ही had lost 5 kgs, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई कैलोरी कंट्रोल नहीं कराई, HbA1c 8.2 से 6.5 आ गया, फास्टिंग ग्लूकोज 165 से 110, राइट, बीपी नॉर्मल था, एनर्जी इंप्रूव हो गई, नो शुगर क्रेविंग्स, बेटर स्लीप, मेटफॉर्मिन की टेबलेट 1 हो गई एंड दिस, ये जब मैंने स्टडी बनाई थी उसको 2 महीने हो चुके हैं, आई एम हैप्पी टू टेल यू अब उसकी मेटफॉर्मिन बंद हो गई है एंड वेट लॉस जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। तो 3F प्रोटोकॉल ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि ये 3F से हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, गट डिसबायोसिस और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करते हैं।
कौन सी फास्टिंग करनी है, कैसा खाना खाना है, किस टाइम पे फाइबर लेना है। फास्टिंग में इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्सटेंडेड फास्टिंग एंड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, विच इज इंटरमिटेंट ओनली। जनरली पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग से शुरू करो, एंड देन रिपोर्ट्स देखकर भी टेल देम 16 घंटे की फास्टिंग पर आओ। 5 दिन फास्टिंग करो 16 घंटे की, 2 दिन करो 14 घंटे की या 12 घंटे की। एक एक्सटेंडेड फास्टिंग होती है जो कि फैटी लिवर भी अगर साथ में होता है उनमें बहुत हेल्प करती है, which is 24 to 72 hours of fast, which triggers profound autophagy, stem cell regeneration and metabolic reprogramming. ठीक है जी। तो फास्टिंग करती क्या क्या है? इंसुलिन लेवल ड्रॉप्स कराती है, फैट ऑक्सीडेशन शुरू कराती है, रिसेप्टर्स को रीसेंसिटाइज करती है ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, ग्लाइकोजन को डिप्लीट करती है, लिवर को क्लीन करती है, सेलुलर क्लीनअप होता है एंड मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी रिगेन होती है। मींस जब कार्ब्स बॉडी खाए तो कार्ब्स डाइजेस्ट कर लेती है, जब बॉडी फैट खाए तो फैट डाइजेस्ट कर लेती है। देन कम्स फूड। एंटी इंफ्लेमेटरी न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी में ऑफ कोर्स हम एलिमिनेट करते हैं कुछ फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एडेड शुगर्स, inflammatory oils like palm oil, vanaspati, vegetable oil, processed foods and trans fats. Whereas खिलाते क्या हैं? Leafy greens, cruciferous vegetables, capsicum, ghee, coconut oil, nuts, seeds, avocado, legumes, dal, paneer, eggs and fish, turmeric, ginger, cinnamon and fenugreek, quinoa, millets and brown rice. सो एवरी मील को बैलेंस करना पड़ता है फाइबर के साथ, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के साथ एंड एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स के साथ। ऐसा नहीं है मैं बोल रही हूं, देयर आर स्टडीज पब्लिश्ड इन एलोपैथी मेडिसिन जर्नल्स जो हम पढ़ते हैं कि ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन, मैग्नीशियम का सप्लीमेंटेशन, क्रोमियम, जिंक, विटामिन डी, B12, दे हेल्प मैनेज योर शुगर लेवल्स, राइट। तो ये एलिमिनेशन डाइट करना कैसे है? फूड सेंसिटिविटीज ढूंढने के लिए सबसे पहले वीक में हम करंट डाइट, सिम्टम्स एंड ब्लड ग्लूकोज पैटर्न्स लेते हैं। फिर हम ग्लूटेन, डेयरी, सोया, कॉर्न, एग्स, नाइटशेड्स और प्रोसेस्ड फूड्स हटा देते हैं। वीक 6 से 9 में हम फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ में फिर ग्लूकोज मॉनिटर करते हैं, शुगर, एंड देन फाइनली 10th वीक पे हमारा पर्सनलाइज प्रोग्राम रेडी हो जाता है जिसको फिर आप फ्यू मंथ्स तक फॉलो करते हो और डायबिटीज को रिवर्स करते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डायबिटीज इज गट डायबिटीज कनेक्शन। आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इफेक्ट करते हैं और इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करते हैं। अगर आप यहां पर देखो, एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी हैं जो वो गट माइक्रोबायोम को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है, गट की डाइवर्सिटी को कम करते हैं। है ना। देन कम्स फाइबर्स ट्रिपल एक्शन। सबसे पहले ये एपेटाइट एंड वेट कंट्रोल करता है, GLP-1 और PYY के जैसे एक्शन करता है तो आपको भूख नहीं ज्यादा लगती, माइक्रोबायोम को नरिश करता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और गट लाइनिंग के बैरियर को, मतलब लीकी गट को हील करते हैं। एंड ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, सॉल्युबल फॉर्म जब हम देते हैं तो 10 ग्राम्स ऑफ एडिशनल फाइबर HbA1c को 0.3 से 0.5 रिड्यूस करता है। 3 तरह का फाइबर है, सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च। हमें तीनों तरह का फाइबर लेना है। तो सॉल्युबल में हमारा साइलम हस्क, ओट्स, एप्पल्स, बीन्स, फ्लैक्स सीड्स एंड फेनुग्रीक आता है। इनसॉल्युबल में व्हीट ब्रैन, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स। एंड रेजिस्टेंट स्टार्च में कुक्ड एंड कूल्ड राइस, पोटैटोज, ग्रीन बनानास एंड लेग्यूम्स। तो कोई भी एक एक
फाइबर का सोर्स हर ग्रुप से लेना है एंड रोज खाना है हमको. And this is how a 3F protocol diet looks like. You can take a screenshot of this and see and implement it and see what difference do you see in your sugar levels. This was my story, and I was a diabetic with all these health conditions, and I followed this 3F protocol and did all what I have told you till now, and I reversed my diabetes. So this was me in 2012. Okay? And this is me now. Right? So why did I choose to fight diabetes differently and not continue on the medicines and wait for my doctor to prescribe me insulin? क्योंकि जब मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी ना डायबिटीज से, तो मैंने देखा कि मेडिसिन मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए आराम दे रही थी. मैं बहुत थकी रहती थी, मुझे कपड़े नहीं डालने का मन करता था बिकॉज मोटी बहुत हो गई थी, ब्रेन फॉगिंग बहुत होती थी. और इसी टाइम पे मैंने पूछा कि यार क्या मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रहूंगी या मैं इसको ठीक कर सकती हूँ. एंड उस दिन से आई डिसाइडेड मैं अपनी रिवर्स करूंगी डायबिटीज, सिर्फ मैनेज नहीं करूंगी. एंड माय शुगर लेवल्स हैव नेवर इंक्रीज सिंस देन. फंक्शनल मेडिसिन में विद 30+ years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि पिल्स की अपनी लिमिटेशंस हैं और लाइफस्टाइल मेडिसिन की बहुत पावर है. तो मेरा बस एज अ डॉक्टर एक ही काम है, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स साइंस इनटू डेली एक्शन. आपको रोज फाइबर खाना है, उसके पीछे क्या क्या एक्शन हो रहा है जिससे आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है, दैट इज साइंस जो मैं सिंपल करके आपको एक्शनेबल बना के दे रही हूँ. I am very passionate about helping patients feel energetic, confident and free from constant sugar and worries. बहुत सारे पेशेंट्स ने मेरे साथ पीसीओएस रिस्क खत्म किया, पीसीओएस रिवर्स किया, इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक किया, लाइफस्टाइल वापस ट्रैक पे लाए. एंड रिमेंबर, अगर 1% प्रोग्रेस भी हो रही है ना, तो आप अपनी हेल्थ स्टोरी रीराइट कर रहे हो. राइट? दिस इज अक्षर यादव, who came to me and said my work involves intense long hours of standing and speaking, due to which I had a lot of fatigue, which was causing constant dip in my peak state. Dr. Preeti's correct diagnostic and precise guidance brought my mental clarity and sharpness back. Thank you, Dr. Preeti. Deepika Chawla, she came to me, doctors had said you've become diabetic and RA ho gaya hai. She had just turned 50. I checked her cortisol, it was 2.8. This is, I think, now 5 years back. Since then, her sugar levels have never increased, not even during COVID, and she's healthy and happy. And she keeps coming to me for a regular checkups every 3 months. So guys, if they can do it, you can do it too. I have 5,000 plus such stories, but because of time, I really want to tell you, you can do this too. Halle Berry, she was diagnosed with diabetes in her early 20s. She adopted a strict low-carb ketogenic diet to manage blood sugar. And guys, I've written a book, Cyclic Keto. Credits her lifestyle change for reduced insulin dependence and advocates you can possibly reverse type 2 diabetes. So what does this story show and why does this matter? This shows that lifestyle and consistency can lead to remission, proves that discipline and right guidance matter, and aligns with our approach, doctor-led, health coach guided reversal. Anil Kapoor, Salman Khan, Hrithik Roshan, they defy age, right? Because they use science plus structure plus support, personalized to their body. Treatment prescription is fine, but coaching ensures consistency, which is the key to lifelong vitality. Why this matters for you? Because you can also get a doctor-led health coach who tailors everything to your needs. Medical assessments uncover your root causes, diabetes, hormones, gut, stress. Personalized plan includes diet, exercise, yoga, breathing, and sleep optimization. And this creates sustainable reversal and regeneration, not temporary fixes.
So guys, you can also do it. From management to reversal, yes. Type 2 diabetes can be reversed. Insulin can be stopped in type 2 diabetics. Clinical evidence shows that in early to mid-stage diabetes, targeted lifestyle change can restore insulin sensitivity. So you have two choices. One is I've taught you the 3F protocol. I've taught you what to do. Do it yourself, but make sure that you reverse your diabetes. Second option you have is that whatever I've shared with you, that is what I will help you implement. And do it with me. I will personalize your health based on your root causes. From sugar management to diabetes reversal, I will be your coach and doctor. Now this is very interesting. अगर आप इंसुलिन शुरू करते हो 30 years पर 3800 rupees हर महीने खर्च करते हो, तो you almost spend 13.7 lakhs INR only on insulin, जिसमें आपकी किडनी, आई, हार्ट डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, राइट? तो चॉइस आप ही की है. Either you can do it on your own, use the 3F protocol, do it, or you can do it with me. And I have a beautiful gift for you here. Anybody who is on insulin right now, and if you know somebody on insulin, you must share this with them. I am going to enroll you in a 3-month program. If you follow all the guidance, your chances of stopping insulin are very, very high. And by chance, if you are not able to stop your insulin, you get all your money back. Full money back guarantee, no questions asked. So, this is my contact number, and now I have a gift for all of you. We are open for questions, and I have a gift for you. Let me stop share. Let me unpin myself. Anybody who wants to actually talk to me personally, my team will share a link in the chat box. You have earned a 1 free consultation with me if you book it for tomorrow. Send your case reports to my team. They will help you book a consultation. I will be happy to help you make a program for you there and then. Right? So, but any consultations which are not booked today, you will not be entitled for a free consult then. Yes. Any questions? Thank you very much for joining. I think there are some questions in the chat box. Is soya considered bad due to being GMO? Yes. If we are able to source high quality non-GMO soya, is that a good source of protein? Yes. And we will share the 3F protocol with you. And please book your consults for tomorrow if you want to know why your diabetes is not getting corrected and what is it that you can do to reverse it. Thank you, Sunny. Thank you very much. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you.